Alright, moving forward, let's move to the next LOS ones, hedge fund fees. I'll come to commodities and other asset class. Let me do the hedge funds totally first. So move to the hedge fund fees. I know I've got commodities infrastructure, but move to hedge fund fees first. It's in the next LOS. Just move to hedge fund fees first. Let's complete the hedge fund, the whole thing, and then we'll move to the other asset categories. Everyone with me? I know. It's only the question. The heading may not be there. That's the next LOS. The total fee paid by the investors. If you can read the LOS, describe, calculate, interpret, management incentive fee, net of fees, returns to hedge funds. Did you get there? So that LOS. We need to do that LOS, and yes, there's a sum as well. We'll have to do the sum. सबसे पहले hedge fund fees में management fee, incentive fee term mark करिए. It's full of terms, and this is an important LOS. Mark this important. We already understand management fee and incentive fee. ये discuss किए थे ना, because actually I've done alternate investment with level 3 also. So the base of level 1 is also going to be needed in level 3 तक. So you cannot not understand things right now. ये वाला चीज discuss किए थे क्या? एक बार just tell me when we are talking about कि अपना capital, committed capital के ऊपर में calculate होगा your 2% and not on the drawn down capital. Otherwise the GP will have an incentive कि सारा का सारा पैसा अभी इन्वेस्ट कर दो, बिकॉज मेरे को तो AUM के ऊपर, मेरे को तो इन्वेस्टेड कैपिटल के ऊपर में मैनेजमेंट फी मिल रहा है. बट दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. द मैनेजमेंट फी इज पेड ऑन दी कमिटेड कैपिटल. सो मैनेजमेंट फी वी अंडरस्टैंड इज जनरली 2%, 20%, एंड इंसेंटिव फी इज की प्रॉफिट वाला पार्ट के ऊपर इन ऑर्डर टू अलाइन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पार्टनर्स विद द लिमिटेड पार्टनर्स, सो दैट द जनरल पार्टनर्स आर इन्वेस्टिंग इन दोज काइंड ऑफ फंड्स, दोज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल, जहां उनका फायदा हो. इसलिए मैनेजमेंट फी, इंसेंटिव फी इज गिवन. इसलिए इंसेंटिव फी इज गिवन अ स्मॉल शेयर इन द प्रॉफिट, राइट. नेक्स्ट लाइन में आइए. मैनेजमेंट फीस अर्न रिगार्डलेस ऑफ परफॉर्मेंस. इट इज पेड ऑन, उसके साइड में लिखना तो लिख दो, पेड ऑन कमिटेड कैपिटल. पेड ऑन कमिटेड कैपिटल, वी ऑलरेडी नो दैट. नेक्स्ट लाइन, इंसेंटिव फीस आर अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स. इंसेंटिव फी को डैश करके लिखो, टू अलाइन द इंटरेस्ट ऑफ जीपी एंड एलपी. To align the interest of GP and LP. To align the interest of GP and LP. Done. Next में आना, the most common fee structure में 2 and 20, we already understand that. 2 by 2 plus 20 कर चुके हैं. 2% management fee, 20% incentive fee. नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए. अभी प्रॉफिट्स का वो 3 पार्ट दिया, वो बकवास कर रहा है. देखो, एनी गेन इन वैल्यू, एनी गेन इन वैल्यू इन एक्सेस ऑफ मैनेजमेंट फी, और गेन इन वैल्यू इन एक्सेस ऑफ हर्डल रेट. वी हैड डिस्कस्ड हर्डल रेट, हार्ड हर्डल, सॉफ्ट हर्डल व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट प्राइवेट इक्विटी. उसी टाइम पे डिस्कस कर लिए थे अपने लोग. लेट मी रिपीट दीज टर्म्स. एक बार खाली टर्म्स अंडरलाइन कर दो, फिर मैं समझा रहा हूं एक साथ. हर्डल रेट, हार्ड हर्डल रेट, सॉफ्ट हर्डल रेट. नेक्स्ट, हाई वाटरमार्क. नेक्स्ट पैराग्राफ, फंड ऑफ फंड्स अंडरलाइन करो. 1 and 10. ओके, लेट मी एक्सप्लेन दीज. उसके बाद में लास्ट पैराग्राफ में आएंगे. सो हर्डल रेट एंड ऑल अपने लोग कर लिए थे. द आइडिया इज, सो देयर इज अ फंड दैट हैज बीन क्रिएटेड, लेट्स से 100 मिलियन का. ये कमिटेड कैपिटल हुआ. नाउ सो एलपीज हैव गिवन अ कमिटमेंट दैट 100 मिलियन का फंड देंगे. You are not going to take 100 million right now and start investing immediately. Let's say you've taken 20, then you take 30. So whatever is, this is your invested capital. Now, invested capital जो भी हो, doesn't matter. आपको 100 के ऊपर 2% management fee मिलेगा. Correct? Now, whatever profit you will be generating, उसके ऊपर you will be paid an incentive fee of 20%. Why is this done? So that GPs are working very hard in order to make this fund run and make a lot of profits for the LPs as well. So we are giving them a share as well. क्योंकि तुम लोग मैनेज कर रहे हो फंड को, तो आप अर्न करके दीजिए ना 20, आपको भी 20% प्रॉफिट का शेयर देंगे. सो दीज गाइज आर वर्किंग हार्ड एंड दे आर नॉट गोइंग टू बी वेस्टिंग एलपीज मनी. बट नाउ देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज ऑल्सो. इन ऑर्डर टू रिजॉल्व विच वी नीड टू एड सर्टन कंडीशंस. कंडीशंस किस तरीके का हुआ? से फॉर एग्जाम्पल एक हर्डल रेट का कंडीशन निकाला. हर्डल रेट का मतलब, से सपोज द हर्डल रेट इज 10%. सो हर्डल रेट 10% का मीनिंग मतलब
that if the 100 का fund अगर 110 के ऊपर जाएगा, only then the GP will be paid an incentive fee. So say for example the fund earns a 15% rate, fund का value 115 हो गया, 100 का fund becomes 115, your 15 is your profit part. अभी hurdle rate you will get 20% incentive fee only because it is 115 and your return is more than 10. Suppose your 100 का fund becomes 108, there is an 8% return. There will be no 20% incentive fee paid because you did not cross the hurdle rate. Hurdle rate is a minimum level of return you have to earn. That is a benchmark level of return that has been asked you to, that is expected of you. कि कम से कम इतना return तो आपको earn करना ही पड़ेगा, उसके बाद में you will be getting incentive fees. Now इसमें, now you will get an incentive fee of 20%, but now there is also a question mark. आपको जो इंसेंटिव फी है वो 15 माइनस 10 खाली 5% के ऊपर में आपको 20% मिलेगा, या आपको पूरा 15% का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर 20% मिलेगा. So will you get the return? See, first of all the thing is that only if your return is more than the hurdle rate, only if your return is more than 10% will you get an incentive. But if you get an incentive, will you get the incentive on the entire 15% profit or you will get incentive only on the excess part, 10 के ऊपर, hurdle के ऊपर वाला part of the profit. So अगर खाली hurdle के ऊपर वाला part of the profit पे मिलेगा, in that case it is a hard hurdle rate. अगर आपको पूरा पोर्शन पे प्रॉफिट पे मिलेगा, पूरा इंटायर 15% प्रॉफिट पे यू विल गेट एन इंसेंटिव, इन दैट केस इट इज अ सॉफ्ट हर्डल रेट. आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू? हार्ड हर्डल रेट इज वेयर यू गेट, सी हर्डल रेट टेल्स यू कि अगर इस रेट के ऊपर जाएगा आपका रिटर्न्स, ओनली देन यू विल गेट 20% इंसेंटिव. बट इफ इट गोज अबव दिस, विल यू गेट इंसेंटिव ऑन द टोटल प्रॉफिट और ओनली द पार्ट अबव द हर्डल रेट वाला प्रॉफिट? दैट इज हार्ड हर्डल एंड सॉफ्ट हर्डल. वी हैव ऑलरेडी डन दैट पार्ट. वाटरमार्क क्या था कि से, एंड ये क्यों जरूरी है? सो दैट दे शुड हैव अ बेंचमार्क, दे शुड हैव दैट अग्रेशन कि नहीं इसके ऊपर तो रिटर्न कमा के देना ही पड़ेगा आपको. से फॉर एग्जांपल अ लॉजिक और एन एक्सप्लेनेशन कुड बी कि मैं बैंक में डालता तो 8% मिल जाता, तो 8% तक का अमाउंट के लिए व्हाई शुड आई पे यू इंसेंटिव? 8% के ऊपर जो जाएगा उस पर इंसेंटिव दूंगा. सो आई मे बी मेक हर्डल रेट एज 8%, कि 8% तो यू गॉट टू अर्न एनीवेज, बैंक ही दे देगा इतना, तो आप 8% के ऊपर जो दोगे उसके ऊपर आई विल पे यू इंसेंटिव फीस. आई विल नॉट पे यू इंसेंटिव फी ऑन द एंटायर अमाउंट. बोलो, गेटिंग द आइडिया एवरीवन? एंड वाटरमार्क क्या है? लेट्स से फॉर एग्जांपल द फंड इज डूइंग वेरी वेल ना, आपको इंसेंटिव फीस प्रॉफिट के ऊपर 20% मिल गया. प्रॉफिट मतलब अभी 100 का फंड था, 120 हो गया, तो आपको 20 का प्रॉफिट के ऊपर यू टुक योर 20% बैक होम. नाउ द प्रॉब्लम इज 20 का प्रॉफिट हुआ डज नॉट मीन कि 120 बेच करके एलपीवी पैसा घर ले गया. द वैल्यू ऑफ द फंड हैज बिकम 100 का 120 डज नॉट मीन दैट यू सोल्ड ऑल योर स्ट्रैटेजीज का एसेट्स, यू सोल्ड ऑल योर एसेट्स एंड इक्विटीज एंड एवरीथिंग. अभी क्या हुआ बाद में, फंड जब क्लोज हुआ तो द फंड क्लोज एट 110 लेट्स से, ठीक है. अभी ये जो 10 होगा, अभी आप बोलेंगे 100 का फंड 110 पे हो रहा है, मेरे को 10 का ऊपर इंसेंटिव फी ला के दो. 10 के ऊपर इंसेंटिव फी नहीं मिलना चाहिए बिकॉज यू ऑलरेडी बीन पेड इंसेंटिव फी अप टू 120. नाउ व्हेन द फंड इज गोइंग डाउन, लेट्स से 110 के ऊपर जाके 130 होगा, आई विल पे यू इंसेंटिव फी ओनली ऑन द एक्स्ट्रा 10 पार्ट. Because 100 से 120 तक के ऊपर you already received incentive fee. You will receive incentive fee only if you cross the earlier reached highest level. क्योंकि 120 तक के ऊपर तो आपको इंसेंटिव मिल गया. अब मैं आपको 110, 130 के ऊपर मैं वापस इंसेंटिव दूंगा, तो ये जो 10 वाला पार्ट है इसके ऊपर डबल इंसेंटिव मिल गया. You got 20% on the same profit twice. Are you understanding? I bought a share of 100 rupees. Now that is 150. मैं 50 रुपीज के ऊपर पोर्टफोलियो मैनेजर को प्रॉफिट दे दिया, उसका शेयर दे दिया. अभी शेयर 130 हुआ, उसके बाद में वापस 180 हुआ, तो 130 से 180 के बीच में थोड़ी प्रॉफिट दूंगा, उसको शेयर दूंगा. वो तो 150 के ऊपर जो 180 वाला पार्ट है उस पे दूंगा, बिकॉज अप टू 150 आई ऑलरेडी पेड द मैनेजर हिज इंसेंटिव का शेयर. बोलो, फॉलोइंग, अंडरस्टैंडिंग दिस? सो दिस इज अ हाई वाटरमार्क प्रोविजन that whatever is the highest level you've reached earlier, उसके ऊपर जब आप क्रॉस करोगे तब आपको उसका ऊपर वाला पार्ट पे इंसेंटिव मिलेगा. I should not pay you the incentive on the whole amount because सब तो सेम प्रॉफिट पे डबल इंसेंटिव हो जाएगा. बोलो, clear everyone? There is another term, clawback provision, that has not been mentioned over here, but you should know the clawback provision also. Clawback provision क्या होता है? Say suppose ये फंड यहां बंद हुआ. Say suppose the fund has closed at that point, let's say 120, 125, 122 or something. Now general partner has received profit on पूरा का पूरा 30. Let's assume hard hurdle नहीं है, पूरा 30 का प्रॉफिट पे जनरल पार्टनर को कितना मिल गया? 30 का 20% 6.
लेकिन जब फंड क्लोज हुआ वो 122 पे क्लोज हुआ. सो लिमिटेड पार्टनर को कितना मिला? 22 में से 6 जा चुका. लिमिटेड पार्टनर विल बी लेफ्ट विथ 16. नाउ दिस इज नॉट 20-80 रेशियो, राइट? दिस इज नॉट 20-80 रेशियो. लेट्स अज्यूम इसको 6 दे दिया. अपार्ट फ्रॉम द 6, मतलब ये 6 को अगर इंक्लूड करेंगे तो वैल्यू 122 है. तो 122 मतलब इसमें 6 इंक्लूडेड है. लेट्स से द फंड इज लेट्स से 116 नाउ. सो अगर 6 इंक्लूड करेंगे तो फंड वैल्यू इज 122. सो इसको 6 ऑलरेडी मिल चुका है 130 का 30 पे 20%. तो अभी फंड का वैल्यू 116, तो इसको 16 मिला. अगर इफ यू इंक्लूड दिस 6, so 116 का फंड इज वर्थ 122. आइडियली आपका 22 का प्रॉफिट हुआ जिसमें से 6 ये ले चुका था पहले से, एंड फंड का वैल्यू 116 है, ये 16 लेगा. 22 का 20% इज इक्वल टू 4.4 एंड 80% इज इक्वल टू 17.6. But what has happened is GP is getting only 16 and LP is getting 6. So don't you think this is unfair? Idea was 20-80% ratio. हुआ क्या ना, 130 के ऊपर ये तो इंसेंटिव ले चुका, फंड क्लोज्ड एट अ लोअर वैल्यू. तो डोंट यू थिंक ये एक्स्ट्रा इंसेंटिव लेके रखा है, इसको इंसेंटिव 1.6 जितना इंसेंटिव वापस करना चाहिए? दैट इज क्लॉबैक प्रोविजन. हाँ, सॉरी दिस इज नॉट 20-80 रेशियो. ये 20-80 रेशियो नहीं है. दिस इज रॉन्ग. सो क्लॉबैक प्रोविजन इज दैट इफ द फंड क्लोजेस एट अ वैल्यू विच इज लोअर देन जितना आपको इंसेंटिव मिला, आपको उससे ज्यादा इंसेंटिव फी मिल चुका है, फंड बाद में कमती वैल्यू पे क्लोज हुआ, तो आपको जो एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिला वो वापस करना पड़ेगा. दैट इज अ क्लॉबैक प्रोविजन. दैट इज अ क्लॉबैक प्रोविजन. सो हर्डल रेट मतलब इस लेवल के ऊपर रिटर्न आएगा, देन यू विल गेट पूरा प्रॉफिट पे सॉफ्ट हर्डल, ऊपर वाला पार्ट पे खाली मिलेगा हार्ड हर्डल. बॉटम मार्क इसकी जो लेवल पे जो हाईएस्ट लेवल रीच था, जितना तक इंसेंटिव मिल गया, ओनली उसके ऊपर जाने से इंसेंटिव मिलेगा बाद में. दैट इज हाई वाटर मार्क. एंड इफ द फंड वैल्यू गोज डाउन लेटर एंड क्लोजेस एट अ लोअर वैल्यू, तो आपको जो पहले एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिला है, यू विल हैव टू रिटर्न इट बैक. दैट इज नोन एज योर क्लॉबैक प्रोविजन. टेल मी 100% क्लियर टिल हियर? नाउ लेट्स सी द टर्म. एक बार बुक देखते हैं, लैंग्वेज थोड़ा अजीब है. सो पहला जहां पे अपने स्टॉप किए थे, प्रॉफिट्स कैन बी एनी गेन्स इन वैल्यू और इट कैन बी गेन्स आफ्टर मैनेजमेंट फी. मतलब मैनेजमेंट फी माइनस करने के बाद में, यू नो, वी हैव टू पे दिस 20%, राइट? तो या तो 130 का 30 पे 20% दो, या बोलो कि नहीं 30 में पहले तो मैनेजमेंट फी माइनस होगा, तुम 2% ले लिया तो 100 का, तो पहले वो 2% माइनस होगा 30 में से 2 पॉइंट समथिंग, जो नेट अमाउंट होगा उसका 20% मिलेगा. वी कैन डू द कैलकुलेशन एनीवेज, एंड वो फंड में बताया जाएगा पहले से. दैट विल हैव टू सी इन द फंड हाउ इट इज बीइंग डन. So any gain in value in excess of management fee की नहीं, management fee माइनस करो प्रॉफिट में, उसके बाद नेट प्रॉफिट का 20% 80% होगा. और gains in excess of hurdle rate, we've discussed hurdle, hard hurdle, soft hurdle. This is fine. Next, watermark we've understood. This is fine. Next, fund का 1 and 10 also we understand, double layer of fees that we've covered. Next paragraph में आइए. अब वो irritating paragraph है. For calculations for both management fees and incentive fees can differ not only by the schedule of rates but also by the method of fee determination. समझो, अभी या तो रेट, हर्डल रेट कोई का 8 है, कोई का 7 है, कोई का 6 है. So of course the management fee, incentive fee and all can differ because of these characteristics. कोई का 8% हर्डल रेट है तो मैनेजमेंट फी अलग होगा, किसी का 7 है तो अलग होगा, सॉफ्ट हर्डल है, हार्ड हर्डल है अलग होगा. बट ऑल्सो बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन. मतलब कोई बोलता है नहीं पहले हर्डल रेट, पहले मैनेजमेंट फी माइनस होगा, उसका इंसेंटिव होगा. कोई बोलता है बिगिनिंग वैल्यू ऑफ द फंड के ऊपर परसेंट कैलकुलेट करो. कोई बोलता है नहीं एंड ऑफ द फंड का वैल्यू के ऊपर मैनेजमेंट फी कैलकुलेट करो. सो यू नो देयर कुड बी डिफरेंसेस. एक काम करते हैं, लेट मी डू द एग्जांपल फर्स्ट एंड देन लेट मी कम टू दिस पैराग्राफ. कम टू द क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन में आइए. BJI funds is a hedge fund, यही दिया हुआ है, देख लेना. With a value of $100 million at the beginning of the year, BGI funds charges a 2% management fee on asset under management at the beginning of the year. समझ में आया? 2% मैं beginning of the year का वैल्यू पे चार्ज कर सकता हूँ, end of the year पे चार्ज कर सकता हूँ, तो ये सब वेरिएशन कर सकते हैं. So now see, hedge fund anyways you understand is not something that is regulated so much. You can have whatever structure you want. आपको अपना फंड का कैसे क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रखना है वो आपके ऊपर है. So there is a lot of ways in which it can be done. यहाँ पे बोल रहे हैं बिगिनिंग वैल्यू पे 2% इंसेंटिव है एंड 20% इंसेंटिव विद 5% हार्ड हर्डल, और हाई वाटर मार्क भी है. आप लोग का सॉफ्ट कर दिया, ठीक है, दैट इज अ चेंज दे हैव डन. सो 5% सॉफ्ट हर्डल रेट है
and are calculated on gains net of management fees. Correct? यही दिया है. And it uses high watermark that I've seen. And incentive fees are calculated net of management fees. ठीक है, let me do the sum. Values क्या है? 125.75 है पहला. 102 point something. ठीक है, let me do the sum. They've changed the figures. दे दो ना एक बार. Thank you. So let's see. तो फालतू कर दिया सम, अच्छा सम था. ठीक है, let's see. Soft hurdle rate. I'll give you another sum also then. Your opening balance in year 1, you had a fund of $100 million. You had made an investment of $100 million. उसके बाद में बोल रहा है आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है ईयर 1 का. ईयर 1 का क्लोजिंग बैलेंस 102.2. 2.2 दिया है तो ईयर 1. अच्छा 110 दिया है. ठीक है करो. ईयर 2 का क्लोजिंग बैलेंस 118. और कोई कॉलम लगेगा? नहीं लगेगा. सॉरी. सो बेसिकली वी बीन गिवन अ फंड. उसका ओपनिंग बैलेंस 110 था जो इनिशियली इन्वेस्ट किया. 2% मैनेजमेंट फी, 20% इंसेंटिव है. 2% मैनेजमेंट किसका है? बिगिनिंग वैल्यू का. तो सबसे पहले इसका इंटू 2% ये होगा. So opening into 2% will be this. This is clearly mentioned in the question. So 110 का 2% कितना होता है? 2.2. 110 का 2.2% हुआ. Now let's see. हाँ 2.2. हाँ ठीक है. उसके बाद में बोल रहा है सॉफ्ट हर्डल रेट है. सॉफ्ट हर्डल मतलब जो प्रॉफिट होगा पूरा प्रॉफिट पे मिलेगा. एंड देयर इज ऑल्सो हाई वाटर मार्क. हाई वाटर मार्क विल नॉट इवन कम इन दिस क्वेश्चन बिकॉज वी आर सीइंग इट्स नॉट कि बढ़ के गिर रहा है, गिर के बढ़ रहा है. बढ़ के गिरेगा तब हाई वाटर मार्क एंड ऑल दैट विल कम. कि बढ़ा फिर गिरा फिर बढ़ा, then high water mark will come in. But if it's fallen down and then it has increased, high water mark is of no use to me. So first year return भी निकालना, एक और कॉलम रिटर्न का भी लगेगा. So first year I invested $110 million and the closing balances देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ending value before fees, मतलब before subtracting management fee and incentive fee, उसके पहले ये closing balance हुआ है. इसके बाद फीस वगैरह निकलेगा. तो 110 I invested, 102.2 was the closing balance. So 2.2 मेरे को मैनेजमेंट फी देना पड़ा. तो ये फीस माइनस कर देंगे तो 110 has actually become $100 million का. तो क्लोजिंग बैलेंस एंड इंसेंटिव फीस ऑब्वियसली 0. तो यहां पर आपका क्लोजिंग नेट बैलेंस कितना हुआ? 100. सो आपका रिटर्न कितना हुआ? योर रिटर्न इज -10 on 100 which is 9.09%. -9.09%, sorry. Make sense? Easy? Sure? This is fine, right? अभी नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस इज 100. तो आपको ओपनिंग बिगिनिंग ईयर का बैलेंस पे मैनेजमेंट फी देना पड़ता है. दैट इज 100 into 2%. इंसेंटिव फी अब कैलकुलेट करना पड़ेगा. यहां पर इंसेंटिव फी में 100 का आपका 100 के ऊपर 18 हुआ है बिफोर फीस, मतलब 116 इज द अमाउंट. 100 का 116 हो गया है. तो व्हाट इज योर रिटर्न? 16% रिटर्न आ रहा है. आपका इंसेंटिव फी कितना होगा? यू आर गेटिंग 116. इंसेंटिव फी माइनस करना बाकी. आई नो दैट 118 minus 2 is 116. So you are getting 116 minus 100 by 100. That is 16% is the return of the fund. This is the return of the fund. ये LP का रिटर्न नहीं है. LP का रिटर्न आएगा GP माइनस होने के बाद. समझो 100 का वैल्यू था,
118 बन गया है, 2 का मैनेजमेंट फी दे दिया, तो 118 माइनस 2 116 बचा है. अल्टीमेटली व्हाट इज योर रिटर्न? 16% इज योर रिटर्न. नाउ 16%, इज इट अबव 5%? हर्डल रेट क्या था? 5 है. सो इज 16% फंड का रिटर्न. फंड का रिटर्न तो 16 हुआ. एंड उसमें आई थिंक रिटर्न इंसेंटिव फी बोला हुआ है. इंसेंटिव फीस आर कैलकुलेटेड ऑन गेन्स नेट ऑफ मैनेजमेंट फीस. Incentive fees is calculated on gains net of management fee. So gain net of management fee करके return आएगा, उसके ऊपर incentive मिलेगा. So incentive is going to be paid on 16, not on 18. Incentive is paid net of management fee. Management fee minus करके जो return आया 16, उसके ऊपर incentive fees है. बोलो, following? So incentive fees is going to be paid on 16. अब 16% का return, is it more than 5, less than 5? More than 5. So should I get incentive fee or should I not get incentive fee? I will get incentive fee. तो incentive fee अपने लोग का 3.2 आएगा. So incentive fee will be 16 into 20%, which is equal to 3.2. तो minus 3.2 करने के बाद में final net value, net closing balance will be how much? 116 minus this 112.8. So ये fund का return है. LP का return कितना होगा? LP का return is 12.8%. LP का return will be 12.8%. और अगर फंड का आफ्टर इंसेंटिव फंड का रिटर्न मांगेंगे नहीं, ये गलत करके दिया ये 118 माइनस 1.2 कैसे आएगा? एक सेकंड देयर सम मिस्टेक हो गया. अरे गाइस वी मेड वन मिस्टेक. बताओ क्या? माइनस 110 होगा. दिस इज एक्चुअली 6 का इनकम, राइट? अपने लोग का फंड 110 का था. 110 के ऊपर में फंड बिकेम कितना? 118. अगेन यू इन्वेस्टेड 110, यू पेड 2.2, 102.2 हो गया था फंड. 9.1% का नुकसान हुआ. अभी 100 हो गया है. अभी 100 बना 118. सो 2 तो माइनस होगा बिकॉज इंसेंटिव फीस कैलकुलेटेड नेट ऑफ दिस. सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? 116. नाउ 116 माइनस 100 करके देखना पड़ेगा. योर रिटर्न इज इक्वल टू 16%. दैट इज फाइन. सो दैट इज मोर देन 5%. बट आपको अगेन वो इंसेंटिव सोचो ना. 110 के ऊपर में 6 का इनकम है. 110 के ऊपर में 6 का इनकम है. So you will have to calculate this on 6 का 20%, which is 1.2. This is not 3.2 because 110 का incentive किया था. Now let me explain the concept. I know you're getting a little confused. 110 का fund 116 बन रहा है. अगर मैं 3.2 इसको दे दूंगा तो LP के लिए कितना बचेगा? 116 बेचोगे, 6 minus 3.2, LP is getting 2.8. तो this is not 20:80 ratio, right? Is this 20:80 ratio? अगर मैं पूरा, सो द आइडिया इज वो 110 देखना भूल गया था. सो अगर 16 के ऊपर 20%, इफ आई एम पेइंग $3.2 million टू द जनरल पार्टनर, देन द लिमिटेड पार्टनर विल गेट 116 माइनस 3.2. वो 16 माइनस ये कर दोगे और 110 का इन्वेस्टमेंट था तो अल्टीमेटली तो 6 का ही इनकम हुआ. टोटल इन्वेस्टमेंट 116 था, 110 था, वो 110 जाकर के 118 बना. ये सब तो फीस वीस में जा रहा है आपका पूरा. So ultimately 110 is right now what? After paying management fee it's 116. So 6 का इनकम पे अगर मैं इसको 3.2 दे दूंगा तो इसके पास तो 6 का इनकम में खाली 2.8 बचा. ये लॉस भी तो रिकवर करना पड़ेगा पहले आपको लास्ट ईयर का. Are you understanding the idea? So 6 के ऊपर में if I pay him 3.2 and 2.8, don't you think this is not 20:80 ratio? तो 6 के ऊपर में इसको 1.2 मिलेगा 20% and इसको 4.8 मिलेगा 80%. So GP LP should always have a split of 20:80 ratio. So if I calculate it on 100 का 16 के ऊपर, that 20:80 ratio gets violated. So this will be 6, that is 118 minus 2 minus 110, उसका 20%. That is this value 1.2. Total fees paid is 1.2 plus 2, that is total fee is equal to 3.2. So therefore LP का रिटर्न ये नहीं होगा ना. So LP का रिटर्न will be 118 से 2 का फीस गया and 1.2 का फीस गया, that is 114.8, right? So LP का रिटर्न will be 14.8% this year.
ओनली दिस ईयर के हिसाब से 14.8 है, ओवरऑल में 14.8% का रिटर्न नहीं है। ओवरऑल में तो 110 इज बिकमिंग 110 14.8। दिस ईयर का एलपी का रिटर्न इज 4.8। दिस ईयर फंड आफ्टर इंसेंटिव नहीं, फंड आफ्टर इंसेंटिव नहीं है, आफ्टर मैनेजमेंट फी दिस ईयर the 16% is the fund का return after management fee for only this year. It's not the overall return. एक बार इस फॉर्मेट में ले लो. I'll again discuss the example. I'll again discuss. I know you're confused. बता रहा हूं. I'll give you another question as well. I'll do that. हाँ 110 होगा, वो ठीक लिखा. The return is always calculated on the beginning of the year value. एक बार टेक दिस मैं समझा रहा हूं. हाँ इट्स ओनली, हाँ ओनली दिस ईयर. ये 14.8% इज ओनली फॉर दिस ईयर. I'll explain this whole thing again. Let's see. So basically in the first year we invested 110. The value of the fund became 102.2. But abhi 102.2 mein there is no fees and all that has been subtracted because the question tells you that the closing balance before any fees has been paid. The fee is supposed to be paid, management fee, on the opening balance beginning of the year ka value. So 110 into 2% is 2.2. After you pay this amount, the closing balance is 100 and of course you don't get an incentive fee. The return for this particular year is minus 10 का आपने return कमाया on 110 का investment. 100 minus 110 divide by 110, P1 minus P0 by P0, ending minus beginning by beginning. Next year 100 के fund has become 118 का fund. But that is again before the management fee is paid. Management fee देने का is going to be 2% of this, which is 2. Now when you're talking about the balance, 118 minus 2, 116 बचा. बिकॉज अपना जो रिटर्न है नेट ऑफ मैनेजमेंट फी कैलकुलेट हो रहा है इंसेंटिव फी के लिए, तो इंसेंटिव फी का रिटर्न इज कैलकुलेटेड नेट ऑफ मैनेजमेंट फी विच इज 116 माइनस 100 by 100 विच इज 16%. दिस 16% इज फंड आफ्टर मैनेजमेंट फी फॉर दिस ईयर का रिटर्न. पूरे फंड का रिटर्न है, जीपी का रिटर्न नहीं है, एलपी का रिटर्न नहीं है. ये पूरा फंड ने 16% कमाया आफ्टर द मैनेजमेंट फी हैज बीन पेड. नाउ दिस 16% इज मोर देन 5%.
So this year's performance is better than 5%. It's more than the hurdle rate, and the hurdle rate is soft hurdle rate. So therefore, we have to pay an incentive fee over here. ये जो इंसेंटिव होगा वो 118 माइनस 216 हो गया था फंड का वैल्यू, माइनस 110 पे होगा, नॉट 100 पे, बिकॉज अगर 100 क्यूब माइनस करके दे देंगे, सो दिस गाय एंड्स अप गेटिंग मोर देन 20% ऑफ द प्रॉफिट शेयर. इट वाज 110 का इन्वेस्टमेंट इन अल्टीमेटली, तो 110 का इन्वेस्टमेंट बिकेम 116 नेट ऑफ मैनेजमेंट फी. तो वो 6 का आपको 20% 1.2 मिलना चाहिए, बिकॉज अगर मैं आपको पूरा 100 माइनस करके 16 का 20% दे देता 3.2, देन द इनकम इज नॉट बीइंग शेयर्ड इन द रेशियो 20/80 व्हिच वाज प्रॉमिस्ड. सो 110 माइनस करके आपको 1.2 का इंसेंटिव मिल रहा है. सो द टोटल मैनेजमेंट फी दिस ईयर इज 3.2, एंड 1.2 देने के बाद में व्हाट इज लेफ्ट, 116 माइनस 1.2 इज 114.8. सो एलपी का इस साल का रिटर्न, ओनली दिस ईयर का रिटर्न इज 114.8%, इज 14.8%. 100 के ऊपर 14.8 का कमाई इस साल हुआ है. ओवरऑल देखोगे तो 110 बिकम्स 114.8. सो यू वांट 4.8 ऑन 110 का इन्वेस्टमेंट. बोलो, फॉलोइंग दिस टोटल देखेंगे. हाँ, टोटल देखेंगे तो 6% का रिटर्न हुआ है. करेक्ट. Hurdle rate is 5%. We have crossed that, and it's soft hurdle, so we'll get the incentive on the total profit, on the entire profit. It's a soft hurdle rate. Clear? 110 इन्वेस्ट किए थे. 110 इन्वेस्ट किए थे. 100 मैंने गलत बोला था, इसलिए आई करेक्टेड कि ईयर 1 का बिगिनिंग में 110 इन्वेस्ट हुआ है. बोलो, कंफर्टेबल टिल हियर? एक और क्वेश्चन देता हूं. यू गाइस ट्राई इट फर्स्ट. This is actually the previous version of the question. Let me do this also for you. These are the terms. Now try this. Try this question. These are the terms. 5% hard hurdle rate, watermark is there, 2% beginning value का होगा, and 20% net of management fee का होगा. And these are the ending values for years 1, 2 and 3 without any fees being deducted. Closing balance before fees. Now try this question. I'll get to that. Try this. I'll give you 5 minutes. All right, let me see. So basically the management fee is already mentioned. The management fee is of the beginning value, 2% of the beginning value. So this is going to be 2. Now there's a hard hurdle rate of 5%. So only profits above 105 value is what I'll be getting. Hard hurdle rate है 5% के ऊपर का जो पार्ट है प्रॉफिट का, खाली वही मिलने वाला है अपने लोग को. तो इंसेंटिव फी जब कैलकुलेट करना है 125.75 माइनस 2 माइनस 5% ऑफ 100 माइनस 100, इसके ऊपर इंसेंटिव फी होगा.
इन्वेस्टमेंट 100 था, 5% ऑफ 100 के ऊपर वाला पार्ट पे प्रॉफिट मिलेगा. यू कुड हैव सिंपली डन 105% ऑफ 100 ऑल्सो. 105% ऑफ 100 भी कर सकते थे. 125.75 में 2 तो मैनेजमेंट फी चला गया, बिकॉज इट इज गिवन दैट दिस क्लोजिंग बैलेंस इज बिफोर एनी फीस इज पेड. मैनेजमेंट फी देने के बाद में 5% तो हर्डल रेट का चला जाएगा. सो कितना हुआ? 125.75 माइनस 2 इज 123.75. 23.75 में 5 वो भी गया, तो कितना? 18.75 बचा. सो 18.75, सॉरी ये यहां लिखना था, सॉरी 18.75 का 20% कितना होगा? हाँ 3.75. सो ये इधर लिख लेना. हाँ इसका कैलकुलेशन यहाँ का है. सो देयरफॉर 125.75 माइनस 2 माइनस 3.75, दैट इज 120 is your closing balance. बोलो, अंडरस्टैंडिंग दिस? 120 is your closing balance. 125.75 माइनस 2 माइनस 3.75. ऑब्वियसली क्लोजिंग बैलेंस में 5 हर्डल रेट थोड़ी माइनस होगा. मेरा फंड का ये बैलेंस था, ये और ये मैनेजमेंट फी दिया, तो ये दोनों माइनस करके आई एम लेफ्ट विद द क्लोजिंग बैलेंस. बोलो, फॉलोइंग दिस? अच्छा, उसके बाद में रिटर्न का कैलकुलेशन टू बी नीडेड सेपरेटली. रिटर्न कैलकुलेट करना है तो 2 टाइप से रिटर्न निकाल सकते हैं. वैसे रिटर्न नहीं निकालना होगा. नेट रिटर्न इफ यू वांट टू कैलकुलेट 120 माइनस 100 बाय 100 इज 20%. दिस इज अ रिटर्न टू एलपी. एलपी का रिटर्न हो गया, करेक्ट. नेक्स्ट ईयर द ओपनिंग बैलेंस इज 120 which becomes 127.5. नाउ 127.5 120 पे आपको 2.4 तो इधर देना पड़ेगा. पहले 2.4 आपको यहां पे देना पड़ेगा. दैट इज अगेन बिगिनिंग वैल्यू इनटू 2%. नाउ व्हेन यू लुकिंग एट द इंसेंटिव फी वाला पार्ट, इस बार तो शायद इंसेंटिव फी नहीं लग रहा है. 125 बन गया यहां पर. इंसेंटिव फी वाला पोर्शन इफ वी सी, देख रहे एक सेकेंड, 127.4 है, उसमें से 2.4 का अपना मैनेजमेंट फी चला गया. उसके बाद में आपको 120 का 5%. वाई 120 का 5%? बिकॉज 120 अप टू 120 तक का तो अमाउंट का हो चुका है. देयर इज अ हाई वाटर मार्क ऑल्सो. 120 का 5% कितना? 6. सो 120, ये तो 119 हो जाएगा फिर. तो 119 तो इससे भी कम हो गया. सो देयरफॉर देयर इज अ 0 इंसेंटिव फी दिस टाइम. अंडरस्टैंड? बिगिनिंग वैल्यू 120 है, 120 पे इस बार 5% चाहिए, बिकॉज 120 के पहले वाला अमाउंट तक तो हो गया है ना. इट्स अ हाई वाटर मार्क प्रोविजन. 120 के ऊपर तक का तो आपको मिल चुका है. 120 वाज द क्लोजिंग बैलेंस अर्लियर. 120 का 5% के ऊपर जो पार्ट ऑफ द रिटर्न होगा उसके ऊपर यू विल गेट इंसेंटिव. दिस वैल्यू बिकम्स नेगेटिव. दिस इज नेगेटिव नंबर, सो देयर इज फॉर 0 इंसेंटिव फी. बोलो, प्रॉब्लम? हाँ, I'll come to, so her question over here is कि in the previous question जो हम लोग कर रहे थे, previous example जो हम लोग कर रहे थे, यहाँ पर 110 माइनस किया गया था. Previous question when we calculated incentive fee, 116 माइनस 110 करके 6 के ऊपर incentive fee था, but over here why are we doing 120 into 6%? Previous question में इधर incentive fee नहीं था, इधर incentive fee इसलिए आया. Previous question में यहाँ incentive fee नहीं था, loss था. Therefore, you had to consider कि इसके ऊपर वाला part, because ultimately the GP LP should get a ratio of 20-80. GP should get 20% and LP should get 80%. Understand her question? Her question is कि last time 110 यहाँ था, यहाँ 100 था. हम लोगों ने 110 के हिसाब से incentive fee calculate किया. But this time, why are we calculating incentive fee on 120 and why not 100? Because the first point is कि 100 के ऊपर वाला पार्ट के ऊपर इंसेंटिव फी मिल चुका है. अब 120 के बियॉन्ड वाला पार्ट पे इंसेंटिव फी मिलेगा. आपको पुराने ईयर्स का प्रॉफिट पे बार बार थोड़ी इंसेंटिव फी मिलेगा. बट इन द प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे लॉस आया था, तो पहले लॉस रिकवर होगा, फिर जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर इंसेंटिव फी होगा. बिकॉज इफ यू डोंट डू दैट देन 20-80 वाला रेशियो विल नॉट वर्क ना. बोलो, इज दिस क्लियर नाउ? गॉट इट? That this year we are doing 120 का 5%, but previous question में अपने 110 को consider करके काम कर रहे थे. That is her question. So incentive fee is 0. So closing balance net of fee is 125. So you made a 5 का income on 120. That is a net return this year. Return of LP for that particular year.
हर्डल रेट चेक किए ना, 5% के ऊपर नहीं हुआ तो रिटर्न, हर्डल रेट चेक किए तो 5% के ऊपर जाता तो इंसेंटिव मिलता, बट दिस टाइम हर्डल रेट के ऊपर नहीं गया रिटर्न्स अपना। 125 माइनस 6 इज 119, so 120 becoming 119 and minus 120 करोगे तो -1 आएगा, which is negative, so there is no hurdle rate, there is no incentive fee. See, this is fine. And next year your opening balance is 135, no 125, on which you are supposed to be getting 2% will be 2.5. So 138.44 minus 2.5 is how much? And उसमें 125 का 5% माइनस करो, कितना? 1 point? Quickly. 138.44 minus 2.5 minus 125 का 5%, कितना होता है? अरे क्या कर रहे हैं? हाँ, what's wrong with you guys? अब कर लेगा हम खुद, अब क्या बता रहे तुम लोग? 129.69. So 125 has become 129.169, मतलब 125 माइनस करने के बाद I am having a profit of 4.69. करेक्ट है? So 4.69 का I am supposed to be receiving 20% incentive, 0.94, 0.938 to be more precise, और 0.94 भी ले सकते हो. 138.44 was the beginning, was the closing balance. उसमें से अभी का मैनेजमेंट फी हटाओ, बिकॉज जो इंसेंटिव होगा वो नेट ऑफ मैनेजमेंट होगा. उसके बाद में हर्डल रेट क्या है? 125 का 5%. ना 125 का 5% माइनस करना होगा बिकॉज इट्स अ हार्ड हर्डल रेट. यू विल गेट ओनली ऑन द प्रॉफिट्स इन एक्सेस ऑफ 5%. उसके बाद व्हाट आर यू लेफ्ट विथ? 129.69. सो 125 बिकेम 129.69. सो 4.69 का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर आई डिजर्व 20%, दैट इज 0.938 और 0.944, अप्रॉक्सीमेटली 0.94. So 138.5 minus this कितना बचेगा? 130, 135. So 135 मतलब 10 का प्रॉफिट ऑन 125. दिस ईयर का रिटर्न फॉर एलपी 8%. See this okay? And now in the exam the question will tell you whether management fee is on the beginning or closing value, whether the incentive is to be calculated net of management fee वाले पार्ट पे कि विदाउट नेट करने के बाद में हाई वाटरमार्क होगा नहीं होगा, हार्ड हर्डल, सॉफ्ट हर्डल. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल बी देयर. बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आना चाहिए आइडियली, बट यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ओवर हियर. न्यूमेरिकल इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. बोलो अंडरस्टैंडिंग टिल हियर एवरीथिंग. श्योर? कंफर्टेबल? बोलो. हाँ हाँ नहीं, हर क्वेश्चन इज 125.75 माइनस 2 किया 123.75 आया, माइनस 100 करके यू कैलकुलेट 23.75%, देन 5%, बट 5% नहीं ना, इट्स 5% ऑफ द अमाउंट. आपको तो अमाउंट के ऊपर इंसेंटिव मिलेगा. सो इवन इफ यू सबट्रैक्ट 5% देन अल्टीमेटली तो फिर वापस से बिगिनिंग वैल्यू मल्टीप्लाई करो, फिर इंसेंटिव कैलकुलेट करो, गलत होगा. डोंट डू दैट. What we've done is perfect. ठीक है यहां तक? This completes this LOS. हाँ बोलो. हाई वाटरमार्क इसलिए भी यूज नहीं हुआ बिकॉज आवर फंड इज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग. अगर फंड इंक्रीज करके फिर 110 होके फिर 130 जाता, तो 110 के बाद जब 130 होता तो वी वुड नॉट हैव रिसीव्ड इंसेंटिव ऑन 110 to 130 का ब्रैकेट. 125 के ऊपर 130 वाला पार्ट पे इंसेंटिव मिलता. इफ हाई वाटरमार्क प्रोविजन वुड हैव बीन देयर, 125 would have become 110 let's say, फिर 130 होता, तो 110 to 130 जब जाते तो पूरा उसके ऊपर इंसेंटिव नहीं मिलता, ओनली 125 के ऊपर वाला पार्ट पे इंसेंटिव मिलता. बट ओवर हियर द फंड इज इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली, तो हाई वाटरमार्क आया ही नहीं ना. हाई वाटरमार्क तब आता है जब ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, तो इस पार्ट पे मिलेगा, इस पार्ट पे नहीं मिलेगा. बट माई क्वेश्चन इज year 1, year 2, year 3. सो हियर टेक्निकली हाई वाटरमार्क डिड नॉट कम.
प्रीवियस सम में गिर के बढ़ा था. हाई वाटर मार्क नहीं बोलेंगे उसको जनरली, बट प्रीवियस सम में फर्स्ट यू हैव टू रिकवर द लॉसेस. सी अंडरस्टैंड द आइडिया इज दैट द जीपी एंड एलपी शुड गेट अ 20-80 रेशियो. इन द प्रीवियस सम आप पहले लॉस रिकवर करोगे फिर प्रॉफिट आएगा ना. आप लॉस करने के बाद में आप बोल रहे हो कि मतलब आई हैव इन्वेस्टेड 100, देन इट बिकम्स 90 एंड देन यू आर सेइंग कि 90 बिकेम 110, यू गिव मी प्रॉफिट ऑन 20. दैट इज रॉन्ग ना. 100 के ऊपर वाला पार्ट पे प्रॉफिट मिलेगा. दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग इन द प्रीवियस क्वेश्चन. प्रीवियस क्वेश्चन देयर वाज अ डाउन एंड देन एन अप, बट ओवर हियर देयर इज एन अप, अप एंड अप. क्लियर? श्योर? ऑल डाउट्स आर सॉर्टेड? हाँ बोलो. क्लॉबैक नहीं दिया हुआ ना क्वेश्चन में. डाउन गिरेगा तो हाँ, तो क्लॉबैक ऑल्सो ऑब्वियसली द क्वेश्चन हैज टू मेंशन इफ देयर इज अ क्लॉबैक एंड ऑल. क्लॉबैक के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आएगा. बट अगर सपोज द प्राइस वुड हैव फॉलन, बट क्लॉबैक विल बी एप्लीकेबल इन द लास्ट ईयर. मतलब जब फंड बंद हो रहा है, फंड बंद होगा तब क्लॉबैक एप्लीकेबल होगा. एवरी ईयर में क्लॉबैक एप्लीकेबल नहीं होगा. नहीं. सो इफ सपोज प्राइस गोज डाउन, यू डोंट हैव टू गिव बैक इंसेंटिव. फिर प्राइस गोज अप, तो अप में 125 के ऊपर वाला अप पे आपको मिलेगा इफ देयर इज अ हाई वाटर मार्क. एंड सपोज फंड यहां पे नेक्स्ट ईयर 120 पे क्लोज हुआ सपोज, एंड देयर इज अ क्लॉबैक, देन जो 5 के ऊपर इंसेंटिव फी है वो वापस करना होगा इफ द फंड इज क्लोजिंग एट 120. बट इफ द फंड डज नॉट क्लोज एट 120, सपोज इट बिकेम 120 देन 130, तो उसके नेक्स्ट ईयर में आपको खाली 25-30 के बीच के ऊपर में आपको मिलेगा. दैट इज हाई वाटर मार्क के कारण. गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन ऑल द टर्म्स.